गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? आई होप यू एंजॉयिंग माय वीडियोस और आपको मजा आ रहा है इंग्लिश सीखने में। ठीक है, आज हम एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं जिसे कहते हैं मदर टंग इन्फ्लुएंस, MTI। अब हमारी जो भी जबान हम घर पे बात करते हैं, हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती, तमिल, आसामीज, वॉट जो भी है, यू नो वॉट, have you observed friends, we literally convert our mother tongue language, our home language into English। हम आज उसका मुआयना करेंगे and we will go into the depth of this knowledge that why should we avoid this, because we don't have these MTI things in actual spoken English. We need to speak some quality English, some fantastic English which makes you which makes the other person impressed about your English language, and it should come without any hesitance। मेरा मकसद क्या है? मैं चाहता हूं आप लोग इतने फर्राटे से इंग्लिश बात करें जैसे आपकी हम जबान है, आपकी मदर टंग है। ठीक है, तो जरा लेट्स हैव अ लुक एट टुडेस स्लाइड्स। आई हैव मेड सम स्पेशल स्लाइड्स फॉर यू, एक्सक्लूसिवली फॉर मदर टंग इन्फ्लुएंस। यू विल लिटरली सी दिस, यू विल से अरे हाँ, मैं तो यही करता हूँ या यही मैं करती हूँ। इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी कॉमन। लेट्स सी दिस। I'll just start the slide. And should I increase my video size? That's okay, you can, otherwise this will, my video size कम ही रखता हूँ because it might obstruct the view। Alright, so I'll keep it lower so you can just have a look। You know what, oh, so sorry for that। Yeah, please have a lovely look at this। बड़े बड़े लोग आए थे पार्टी में। हम कैसे कहते हैं ना, पार्टी में गए थे, बड़े बड़े लोग आए थे पार्टी में। उसको लिटरली आई हैव सीन पीपल कन्वर्टिंग इनटू इंग्लिश एज, व्हाट विल यू स्पीक? as simple as that, you will say बड़े बड़े लोग आए थे, there were big big people in the party। now is there something called big big people? There's no big or small person, but we should avoid saying that। we don't have big or small, there are some great personalities, or good people, something। so what can you say? You can say, other than this, you can say there were great and wonderful people in the party, there's some nice people, wonderful people in the society, in the party, so you can say that there's no big big people। All right, avoid that big big people। You would say there were great and wonderful people in the party। Cool, makes sense? Think about this, there's nothing called big big or small small। Very time we often repeat these words, big big, small small, no way, stop doing this from right now। Next, what is the matter? I'm not able to shift this, I use the mouse। हम्म, वही ना, हम कितनी दफा करते हैं वही ना, वही तो उससे कितनी दफा मैंने बच्चों को देखा है, दैट ओनली। अभी भी मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं सर वही ना, दैट ओनली सर, दैट ओनली। देयर इज नथिंग कॉल्ड दैट ओनली। ऑलराइट, व्हाट विल यू से? प्रिसाइसली, और यू कैन से एग्जैक्टली। कहते हैं ना वही, एग्जैक्टली। सो वी से एग्जैक्टली और प्रिसाइसली। agree? Take care, you either say precisely or exactly, but not like wahi na only then only, I'm sorry, or then that only, nothing that only। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बार बार, बार बार मुझे गाना याद आ गया लगान का, बार बार हाँ, बोलो हार, बोलो यार ना। ऑलराइट, सो बार बार ना, बार बार को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? अगेन एंड अगेन। सर ही इज डिस्टर्बिंग मी अगेन एंड अगेन, ये बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। अरे अगेन एंड अगेन कुछ नहीं होता है यार, यू विल से एवरी नाउ एंड देन। अभी एवरी नाउ एंड देन या रिपीटेडली, इट्स अ वंडरफुल टर्म, रिपीटेडली। ये हर दफा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है या मुझे बार बार ये तंग कर रहा है, समथिंग व्हेन एवर यूजिंग दैट थिंग, एवरी नाउ एंड देन और रिपीटेडली, बोथ मीन द सेम, बट नथिंग लाइक व्हाट यू से बार बार का एवरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन। ठीक है, चलो। तुम दोनों, यू टू, कितनी बार यू टू? यकीनन आपने यूज किया है यू टू, यस और नो? हमने भी यूज किया है, आई एग्री। बट when you learn good English, you will realize, you will have a laugh, you will smile। अरे ऐसा थोड़ी होता है। What do you say? You two I put in red, it's incorrect। You will say both of you see the beauty। isn't that great? You never say you two। आपको दोनों को बोलना है। सपोज मैं चाहता हूँ कि आप दोनों जरा प्लीज स्टैंड अप, बोथ ऑफ यू। आई से बोथ ऑफ यू प्लीज स्टैंड अप, आई वोंट से यू टू स्टैंड अप, दैट इज वेरी रॉन्ग। नेवर से यू टू और यू थ्री।
You say three of you, either both of you or three of you or four of you or as you say. Next, आज शाम, ये तो बहुत ही बेहतरीन है फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेहतरीन है। आज शाम, आप बोलिए मुझे, आप फरमाइए, व्हाट विल यू से? वोंट यू से टुडे इवनिंग? 100%, कोई दो राय नहीं है। आप यकीनन कहेंगे हाँ ऑब्वियसली, आज शाम मतलब टुडे इवनिंग। My dear friends, in the English language, day and evening, in the English language, a day and evening don't come together. सुबह और शाम, हम हिंदी में कहते हैं सुबह शाम वगैरह. So if you say, if I say about this today evening, it's a red color font. आप नहीं कह सकते ये. It's incorrect. You will use the lovely beauty of English. This evening, आज शाम, आज शाम मुझे बाहर जाना है, या आज शाम मुझे कुछ काम है. This evening I have some work. This evening I'm not available. If someone tells you कि यार आज शाम चलो ज्यादा मैगडी जाते हैं, let's go for a meeting, let's go for an evening a stroll or anything for that matter. No dear, this evening I'm occupied. We can make it tomorrow, maybe tomorrow evening, something that way, you know. कल रात, कल रात, come on, आप मुझे बताइए, कल रात. 9 out of 10 will say yesterday night. Yes or no? सच बोलिए, आप कहेंगे ना yesterday night? I know that सारे वही कहेंगे, पूरे कायनात में लोग वही कहेंगे yesterday night. बट एक्चुअली क्या होना चाहिए? अगर आज दिस है तो कल होगा लास्ट नाइट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सी द कैच. कल रात इज, वी से yesterday night बिल्कुल गलत है, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. यू विल से लास्ट नाइट. कहां yesterday night और कहां लास्ट नाइट? क्योंकि डे और नाइट साथ में नहीं आते. अग्री? सो इट इज लास्ट नाइट. नेक्स्ट, क्या मैं ये कर सकता हूं, क्या मैं ये कर सकती हूं? यू आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट. आप एक गुजारिश कर रहे हैं. क्या मैं ये कर सकता हूं? सर क्या मैं ये कर सकता हूं? क्या मैं पानी पी सकता हूं? कैन आई ईज माई सेल्फ? एनीथिंग फॉर दैट मैटर. तो क्या मैं, ये जो अल्फाज हैं क्या मैं, ये एक गुजारिश है, ये एक रिक्वेस्ट है. गुजारिश को हम कभी कैन से बयां नहीं करेंगे, क्योंकि कैन क्या होता है? आई पीपल से कैन आई डू दिस फॉर यू, कैन आई डू दैट फॉर यू, यू नो. अब कैन होती है कैपेबिलिटी, आपकी क्षमता. अब मुझे क्या पता आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. कैन आई डू इट फॉर यू इज एज पर योर एट्रीब्यूट्स, एज पर योर पोटेंशियल, एज पर योर कैपेबिलिटी. वो मैं नहीं जज कर सकता. तो अगर आपको गुजारिश करनी है, जो गुजारिश का अल्फाज है वो है मे आई. डोंट यू नो दिस? कम ऑन, आपको पता है, आपको खबर है. सॉरी, you will say, may I do this for you? May I come in? You know, children say, can I come in, ma'am? Can I come in, sir? No, may I? Fair enough, that's may I. इसे देखो, इसे देखो, हिंदी में मैंने लिखा है ये आपको बयां करने के लिए. इसे देखो, लुक एट दिस, है ना, लुक एट दिस. 100%, 10 on 10, नॉट 9 on 10, 10 on 10 बोलेंगे इसे देखो, मतलब लुक एट दिस. पर ये रेड में है फ्रेंड्स, ये रेड में है, क्योंकि दिस इज टेकन एज अ कमांड. आप समझे? ये लुक एट दिस कह रहे हैं, ये आप किसी को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. आपको अगर किसी को फरमाना है कि जरा इसको देखो, व्हाट विल यू से? हैव अ लुक एट दिस. इट्स द वेरी पॉलिश्ड वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. हैव अ लुक एट दिस. यू कैन ऑल्सो से प्लीज हैव अ लुक एट दिस, और काइंडली हैव अ लुक एट दिस. योर टोन विल चेंज, your personality will change. Speak these words in your English language and you will see the flair in your language. ठीक है, ये था have a look at this. Next, बैठिए, तशरीफ रखिए, आइए, पधारिए. You're welcoming someone. बैठिए, तशरीफ रखिए. Alright, what will you say? Sit down, sit down, come, sit down, please sit down. चलो, आप प्लीज भी लगा लेंगे. चलो, सिट डाउन तो एक कमांड हो गया. चलो मैं मान लो आप प्लीज लगा लेंगे. काइंडली, काइंडली सिट डाउन. प्लीज हैव अ, प्लीज सिट डाउन. नहीं नहीं नहीं, आज से, इसी वक्त से आपको क्या यूज करना है? आप गुजारिश कर रहे हैं, आप उनका स्वागत कर रहे हैं. प्लीज हैव अ सीट, तशरीफ रखिए, हैव अ लुक, प्लीज हैव अ सीट. यू कैन ऑल्सो से प्लीज टेक अ सीट.
At times अगर seats available हैं and you I mean कोई आया है, you can say please have a seat or please take a seat. Both are comfortable, but have a seat is more apt, more appropriate. So avoid taking take a seat, because if you say take a seat, in my opinion, is again a kind of slight instruction, a slight command. Please take a seat. Have a seat is wonderful, warming, a grand sort of welcome to the person. Please have a seat. कुछ भी मत कहो, कुछ भी मत कहो यार, क्या कुछ भी, ना सिर का ना सर के ना पाँव की बात कर रहे हो, इट्स लाइक कुछ भी मत कहो. क्या व्हाट विल यू से? डोंट टॉक एनीथिंग, है ना? डोंट टॉक एनीथिंग. अब ये क्या है इंग्लिश? डोंट टॉक एनीथिंग. योर प्रॉपर कन्वर्जन ऑफ हिंदी टू इंग्लिश, MTI, मदर टंग इन्फ्लुएंस. ठीक है. सो डोंट टॉक एनीथिंग का क्या रेक्टिफिकेशन क्या होगा? डोंट स्पीक सेंसलेस टॉक्स और बेसलेस और समथिंग विच इज सेंसलेस. डोंट स्पीक आउट ऑफ योर हेड. यू कैन ऑल्सो यूज अ नाइस टर्म, मैंने इस पे लिखना मैं भूल गया. यू कैन से डोंट स्पीक आउट ऑफ द हेड. दिमाग खराब है क्या? दिमाग के आउट ऑफ समथिंग दैट वे, डोंट टॉक आउट ऑफ योर हेड. आर यू आउट ऑफ योर हेड? दैट्स अ गुड वर्ड. अगर कोई कुछ ऐसी सन की बातें कर रहा है, सो आर यू आउट ऑफ योर हेड? Or don't speak out of your head. Don't speak senseless talk. So many ways of speaking. Don't speak senseless talks. All right. So friends, with this, I end my lecture. For the next lecture, I'm going to plan from some lovely sort of different ways of putting English in a better way, as far as your language is concerned. Because मैं चाहता हूँ आप अपनी ज़बान, अपनी जो हिंदी ज़बान है उसी, या मराठी है या गुजराती है, उसी को कन्वर्ट करके उसको तब्दील करें, उसको चेंज कीजिए. क्योंकि ये जो जैसा पार्टी का था, आई मीन बड़े बड़े लोग आए थे, मोटे मोटे मानुस आले होते, मराठी में जो कहते हैं खूब मोटे मोटे मानुस आले होते, बिग बिग पीपल हैड कम. नो नो नो. So far so good. So please avoid these MTI errors and wish you good luck. If you have not subscribed and like to my channel, please do so, and please spread this word to your friends. I am awaiting your answers. मैं जवाब दे रहा हूँ आपको अपने कमेंट्स में. Let us chalk up some time ना. आप मुझे बोलिए संडे को मिलते हैं या शाम को मिलते हैं. I want a live session. ऑलराइट. तो आप लाइव सेशन के लिए मुझे आप वक्त मुकर्रर कीजिए. मैं प्लान करता हूँ लाइव आने के लिए. ठीक है. मे बी संडे अगर आप फारिग हैं या वॉट एवर टाइम इज कंफर्टेबल यू, प्लीज लेट मी नो. यू कैन इंटीमेट इट टू मी इन द कमेंट्स, और सेपरेट यू कैन गिव मी अ कमेंट, whatever is comfortable to you. All right. But please let me know, maybe weekends or even weekdays after dinner, say 9:30, 10 o'clock, whatever is comfortable. At least put your cast your vote. Please cast your vote that what time would you like me to come live, and let us have a rocking session for English. All right. With this, I take your leave. Thank you for valuable time. Hasta la vista. Have a nice time ahead. Have a lovely evening ahead. Have a nice rocking time. Bye bye. Take care. Bye bye.